Basically, the reason is not that I am a motivator or an inspirational character in any way. I'm a very mediocre person and a very mediocre officer. The reason why I'm here is because Iqbal Ahmed, the director of this institute, is a very dear old friend of mine. We were together in Jia Sarai, so our friendship goes back 20 years in time. So I'm here because of him, and he's invited me. It is a pure case of nepotism. ये बिल्कुल भाई भतीजा बात का एक साफ केस है कि एक आदमी ने अपने दोस्त को बुलाया आपको लेक्चर देने के लिए. So it is irrespective of the merit of the person. So if you do not like this lecture and you don't find me motivating enough, don't blame me, blame Iqbal Ahmed. So मैं पहले ही आपसे बता रहा हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा ना हो, आप इकबाल पर अपना गुस्सा निकालिएगा बाद में. I belong to a place called Gurdaspur in Punjab, and so we are not known to think in a very complex or complicated manner. We are intellectually challenged in that sense. We can only speak and think in a very direct straightforward manner. So that is a limitation that I suffer from, and you will have to bear with me on that account. मैं यहाँ आने में थोड़ा हिचक रहा था, बट इकबाल ने कहा कि कबाब खिलाऊंगा अगर तुम आओगे तो वही मेरी मोटिवेशन है कि मैं यहाँ आया. तो जो आदमी 45 साल की उम्र में कबाब खाने के लिए मानेसर से ग्रेटर नोएडा आ सकता है, आप सोचिए जब वो 25 साल का था तो वो सिविल सर्विस के लिए कितना मोटिवेटेड रहा होगा. बहुत मोटिवेटेड था. और आप अपना नसीब देखिए कि आप ऐसे आदमी से मोटिवेशन खोज रहे हैं जो 45 साल की उम्र में कबाब से मोटिवेट हो रहा है. तो आई रियली एम्पैथाइज विद यू. इसलिए मेरे पे आप गुस्सा नहीं करिएगा. You see, I'll divide this for the purpose of comprehension. I'll divide this into 4 basic parts. Basically, I'll tell you my story, what motivated me, what was my motivation and goal, why I chose to become an IPS officer. Then the second is obviously how I went about it, the preparation part, the logistics, and the wherewithal. The third is basically about the emotional aspect, how you deal with this process, which goes for 2 years, 3 years, sometimes more than that. And last but not the least, the role of destiny, the elephant in the room that nobody addresses. वो जो कमरे में एक हाथी है जिसकी बात कोई नहीं करता है, भाग्य, वो उसका अपना रोल है. So I'll touch upon that towards the end. So that's it, how I'll cover it. So first I'll start by talking about my motivation, why I was motivated. You see, I grew up in the Punjab of the 80s and early 90s, when Punjab was, a very disturbed place. It was afflicted with the scourge of terrorism, and Punjabis were being killed left, right, and center by the terrorists. On one hand, you had the terrorists who were killing innocent people, and on the other hand, you had a very brutalized and a very combatized police force. In order to meet the terrorist challenge, the police had become very brutalized, very high-headed, and very, you can say, sometimes the attitude towards the public was also very rough. So we all suffered at the hands of the police, Punjab police. There was a particular incident in Ludhiana in 1993, 20th March, the day of Holi, when I, along with a few of my friends, we were picked up from the cinema hall. We had a fight with the cinema people there, and we were taken to a police station and thrashed. We were beaten up very badly. We put up in the lockup. My father came there. He paid up 2,500 rupees to get me out of the lockup and took me home. So on my way, I was thinking that on one hand, there was this glamour which Punjab police had for me as a child growing up in Punjab, that they are so powerful. There is this glamour, and especially the IPS. On the other hand, that incident, it set me thinking that all this calculus, all this physics, all this chemistry that I know, I was preparing for IIT JEE. This is useless. This is the job. ये असली नौकरी है. किसी को उठाओ, पकड़ो, मारो, खुद आप सेफ हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता. इससे बढ़िया क्या लाइफ है. तो मैं इतना जो पढ़ लिख के इतनी मेहनत कर रहा हूँ 12वीं में, मुझे तो यही करना चाहिए. मैं इंजीनियर बन के करके क्या करूँगा. दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग. सो दिस इज द मोटिवेशन दैट आई हैड. आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट सर्विंग माय कंट्री. I was not thinking about fighting the terrorists. I was only thinking about my personal safety, my comfort, the glamour which this service would get me, and the safety of my family. And all through the period that I prepared for the civil services, which was many years later, this motivation remained. This motivation did not change. So I will be, as they say in English, lying through my teeth if I say that I was extremely moved by the plight of the common man. I wanted to do something. No, it is not true. This service is a great platform to serve your country and the society, but that was not my motivation. My motivation was completely personal, very selfish. तो आज मैं आपसे अब 20 साल बाद कहूँ कि मैं तो जी अपराध को जड़ से हटाना चाहता था, आम लोगों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, बकवास है. मुझसे अपने ही आंसू नहीं देखे गए. जब मुझे मार पड़ी तो मुझे समझ में आया कि मैं इनको ज्वाइन कर लूँ तो मैं सेफ हो जाऊँगा, कम से कम मेरी पिटाई कभी नहीं होगी. So I'm putting it as honestly as I can, because at this stage in my life, when I talk to youngsters like you, the least I can do is being honest. आज के ज़माने में आजकल हाइपरबोल का ज़माना है. सोशल मीडिया में सबका एवरीबडी टॉक्स इन हाइपरबोल टर्म्स. हर आदमी राष्ट्रभक्त बना हुआ घूम रहा है यहाँ पर. हर आदमी पम्प्ड अप है, बड़ी बात करो,
कुछ ऐसी बात करो कि दूसरे को लगे कि क्या बात है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट. वन शुड स्पीक द ट्रूथ इज वेरी पावरफुल, एंड वट एवर बेनिफिट द नेशन और द सर्विस एक्रूड बाय माई ज्वाइनिंग इट वुड बी कंप्लीटली कोलेट्रल एंड अनइंटेंडेड. जो भी लाभ हुआ किसी को मेरे इस नौकरी में आने से, ऐसा मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी शुरू में, वो बाय चांस हो गया होगा, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. सो दिस वॉज द मोटिवेशन. द गोल वॉज द इंडियन पुलिस सर्विस, गोल वॉज नॉट सिविल सर्विसेज. बहुत लोग ये बात कहेंगे, बट इन माई केस इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. पीपल हु स्टडीड विद मी और जो जीएस राय में मेरे साथ थे, दे नो इट. आई जस्ट वांटेड टू जॉइन द इंडियन पुलिस सर्विस. मैं सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं पुलिस में इंटरेस्टेड था. और पुलिस में क्योंकि आईपीएस सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है हिंदुस्तान में, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड था. मैंने तैयारी इसी के लिए की. मैं आईएएस, रेवेन्यू, फॉरेन सर्विस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था. और ये मेरा सौभाग्य है. आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट द सर्विस दैट आई वांटेड, बिकॉज सो नाउ दिस इज 93 that I told you. 1998 when I started preparing. In these 5 years, a lot had happened. I had graduated from IIT Roorkee as a chemical engineer. So my motivation was still there. I still wanted to become an IPS officer, although I was not as motivated now as I used to be in my school days. Luckily for me, in the final year at college, I had befriended a lot of Bihari boys. I had joined the Bihari gang. So all those Biharis, most of them, civil service was their dream too. So we had this shared dream. So we kept on stoking this fire in each other's heart कि this is what we should be doing. But none of us did anything about it. 4 साल किया कुछ नहीं हमने वहाँ पर, कोई तैयारी नहीं की, खाली बातें बैठ के कि ये कर देंगे, उसको कर देंगे, ऐसे उठा लेंगे, तो ये सब बातें खाली. And there was this girl I fell in love with in final year. She was my classmate. I fell in love with her in college, and she was also very, she thought that I could make it. She had heard these stories from me about the Indian Police Service, and she started motivating me too. So poor girl. I don't blame her. So. And this was the positive thing when I started preparing. ये background positive है, but negative side में बहुत कुछ था. सबसे पहले तो ये था कि I had done very badly in college. I was at the bottom of my class in chemical engineering. Academically speaking, I was in the doldrums. Absolutely, very very bad situation. Barely managed to get a job in campus. I got a job, but with great difficulty. Secondly, my confidence was very low, because when you are surrounded by such bright students, the best students from the entire country, and you do so badly amongst them, then just to think that I will appear in an exam in which millions of people would be participating from all over the country, it is very difficult to give yourself a chance. So my confidence was very low, to be honest. And thirdly, I was not keen on taking maths. Chemical engineering was not an option as it is, so I couldn't take my own subject as an option. Maths, physics, I was not keen on taking. I had lost my confidence. So I was thinking that I should appear with humanities. Not that humanities are optional that are to be taken by dimwits like me only, but because I thought that they would be slightly easier to study than my own subjects. So that was my condition. और ये तब की बात है जब मैथ्स बहुत हिट था, late 90s में मैथ्स, फिजिक्स, engineering was getting people bumper marks. All the toppers were from the engineering stream. In those days, as an engineer, I decided to opt for the humanities. That was my mental state. And there was one more important factor. My father's business had floundered and failed. My family was economically facing a lot of hardship. We were lower middle class people, so you can understand. I was the only stable earning member of the family in 1998 after having passed out and got a good job. So my job was very important for the family. So when I decided to quit and prepare for the civil services, my father was not very happy with this decision. He felt that I was making maybe a mistake which I might have to rue later on. And but my mother, God bless her, I lost her 3 months back. She backed me and she said that if you want to do this, you do this. No problems, we will support you. Whatever savings we have, we will be able to support you. But I knew that the savings that my family had would not be able to support me beyond a year or so. That is the kind of money we had, which was very limited. And my giving up my job and getting money from home was something which filled me with a lot of guilt. And the process has changed a bit, but it was almost similar in those days. You had 2 optionals and general studies, and you had to prepare for a year almost before the prelims. And then the examination process itself lasted 1 full year. So for one attempt, you needed almost 2 years. So I thought कि with the kind of savings that my parents have, at least I'll be able to pull through for 1 year. एक अटेम्प्ट तो मैं दे ही दूंगा, तो इतना ही मेरा फोकस है कि एक अटेम्प्ट मैं दे पाऊंगा, उतना दे के नहीं हुआ तो फिर मैं कोई नौकरी कर लूंगा. बट दैट इज अबाउट इट. सो आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो दिस इज द मेंटल फ्रेम इन विच आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज 98 जून. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, विच आई विल कम बैक टू अगेन एंड अगेन, दैट आई वाज देयर ओनली फॉर 1 अटेम्प्ट. Now I am not advocating this as a general policy or a very good policy, but this was my financial limitation. I could not have gone beyond that. So मुझे लगा कि मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगा. So उसके कई नुकसान भी होते हैं, I'll share with you, और कुछ फायदे भी हुए, which I'll come to later. But that is the mental state in which I appeared, and my confidence was low.
आज 20 साल बाद आई गॉट ऑलरेडी रैंक 34, 34वां रैंक आया। तो मैं अब आपसे कहूँ कि मुझे तो पहले से ही बचपन से ही दिव्य दृष्टि थी कि मेरा होना ही है, खाली मुझे एग्जाम देना है, वो झूठ है। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, स्पेशली हैविंग फेयर्ड वेरी बैडली एकेडमिकली इन माई ग्रेजुएशन। आई वॉज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, बट द गुड थिंग वॉज दैट आई रियली वॉन्टेड टू गिव दिस एग्जाम। वो इसलिए कि मेरे दोस्त, मेरे वो बिहारी जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम भी एग्जाम दो, तुम भी दो, हमसे इतना 4 साल बोलते थे ये कर देंगे वो कर देंगे, एग्जाम देने के बाद तुम गायब हो। एंड द गर्ल आई लव्ड, शी वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर इन मोटिवेटिंग मी। तो मैं तो उससे निकलना चाहता था इस झंझट से कि कहाँ मैं फंस गया डींग मार के कि हम बनना चाहते हैं आईपीएस, बनना तो चाहते हैं पर एग्जाम नहीं देना चाह रहे थे कि बिना दिए अगर बन जाए तो कोई ऐसा काम हो बिना पढ़े। तो पढ़ाई की नहीं 4 साल, पढ़ाई किताबों से वास्ता छूट गया था। और ये एग्जाम मांगता है पढ़ाई, कंसिस्टेंट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो मैं एक तरह से था कि आप जैसे रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे, अब आपको इंटरनेशनल मैच में कहीं सीधा आके बैटिंग करो, तो मुझे वैसा लगता था। तो आई कुडंट एस्केप इट, द पीपल क्लोज टू मी वर प्रेशराइजिंग मी, माई फ्रेंड्स, girl I loved, so it was very difficult for me. So basically what I wanted to do was prepare well, give one shot and get out of it. कम से कम मेरे ये पिंड छूटे इस चीज़ से, अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मेरे मन से भी निकल जाएगा कि हम आईपीएस बनना चाहते थे, अब नहीं बने, अब क्या करें, अब कुछ तो करेंगे। तो प्रिसाइसली आई वॉज सीरियस अबाउट द एग्जाम, wanted to appear very seriously, but I was not sure of my success and I was not appearing to succeed. I was appearing to get it out of my system कि ये एक बार तो इसको खुजली को मिटा ही लेते हैं। That's a fact, you know. आज मेरे लिए बड़ा आसान है, आप लोग यंगस्टर हैं तो मैं कहूँ कि बस मुझे एक मौका चाहिए था, मेरे अंदर से आवाज़। आजकल ये तुम यूट्यूब पे जाओगे सब ऐसी बात करते हैं बड़ी बड़ी, यू नो, मोटिवेट, इंस्पिरेट। अब मोटिवेट क्या करें किसी को जब खुद ही इतना मोटिवेटेड नहीं थे, अब झूठ बोले यहाँ बैठ के, दिस नॉनसेंस। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। Now I come to the subjects. Choice of subjects is very important, and many people, you know, they take weeks, they take months, they consult too many people before they decide subjects, and that is how it should be. How I decided my subjects. 5th of June 1998 was a Friday. I turned 24 that day. That day I reached GSRI to decide on the subjects कि जल्दी से करके इसको खत्म करें, because I had decided to resign from my job in mid-June. तो मुझे लगा पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लें, then I'll put in my papers. So I met a friend of mine, Iqbal knows him, Abhimanyu Singh, a very dear friend of mine from Roorkee. He was a brilliant student. He had maths and sociology as his subjects. तो हमने कहा, and he guided me very well कि sociology ले लो, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, कम पढ़ के नंबर भी कम ही आएंगे पर पढ़ना भी कम ही पड़ेगा। Because engineering students in those days, they had electrical and maths, electrical and physics, physics and maths. Very few had one humanities optional. वो इसलिए लेते थे कि उसमें कम पढ़ेंगे, ज़रा जोर मैथ्स और जीएस पे देंगे, ये 200-250 भी आ जाएगा, 600 में चल जाएगा। तो इन दैट स्पिरिट ही टोल्ड मी कि उसका जो वीकर पॉइंट था उसने वो कहा कि तुम ये ले लो एक, तो एक वो ले लिया। अब दूसरा एक श्री प्रकाश दुबे मेरे दोस्त हैं, उनसे मिले उसी दिन GSRI में, ही हैड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द ऑप्शनल्स, उनसे हमने ज्योग्राफी ले लिया। मतलब जैसे कि एक इधर से मांग लिया, एक इधर से मांग लिया, हमें 2 पूरे करने, कोई दिला दो, जिसमें गाइडेंस मिली वही ले लिया। नॉट द सब्जेक्ट्स दैट आई वाज कंफर्टेबल विद, बट द सब्जेक्ट्स इन विच ईजिएस्ट गाइडेंस वाज अवेलेबल। सबसे पहला जो आदमी मिला कि बाएं जाइए, बाएं दिशा में पहला आदमी मिलेगा, वो जो देगा वो ले लीजिएगा, इस तरह से सब्जेक्ट ले लिए। नो, दिस इज नॉट बिकॉज आई वाज नॉट सीरियस अबाउट द एग्जाम, दिस इज बिकॉज आई वाज इन अ हरी. Time was running out. I knew that I had to resign, and I didn't have more than 12 months. The money would run out, and if you don't have the money to support you, how will you prepare for civil services? हवा में तो आप तैयारी करेंगे नहीं, आपको किराया देना है, खाना है, किताबें हैं, तो आपको अपने घर की स्थिति पता होती है। तो मैं आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आई वॉज अवेयर कि मेरे घर वाले मुझे 12 महीने 14 महीने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो मेरी सपोर्ट में बैठे थे कि नो, आई विल डू समथिंग इन लाइफ। तो ऐसी स्थिति में जब घर हो आपका और आप कहें कि अब हम फैल गए हैं, हमको कई साल तैयारी करवाओ, ये पॉसिबल नहीं है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में 1998 की बात है, इट वाज नॉट पॉसिबल। सो डिस्पाइट देयर इमोशंस इट वुड नॉट हैव हैपेंड। सो आई वाज वेरी कीन ऑन स्टार्टिंग ऑफ, सो आई डिडंट वेस्ट एनी टाइम। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। ठीक है, जो मिल गया अभी शुरू करते हैं, अब शुरू किया जाए। एंड आई जॉइंड अ कोचिंग, सोशियोलॉजी कोचिंग विद मिस्टर उपेंद्र गौड़, वंडरफुल टीचर. I wanted to join general studies also. Vajiram and Rao was very famous in those days, but they used to charge 16,000. They had just hiked their fees, and I could not afford that money. So my friends who had joined that coaching, they said, you take these photocopy, you can take these notes and you can study from them. So that arrangement suited me very well. So this is how, you know, I went to GSRI, took a room, and I started my preparation. जब अब मेरा constraint क्या था, time and money दोनों मेरे लिए constraints थे, but advantage क्या होती है, focus ज़्यादा था, because I knew कि यही मेरे पास time है, यही एक attempt है, यही prelims है, उसके बाद mains है, अगर निकलता चला गया तो आगे का देखा जाएगा. So I was only thinking one step at a time. तो एंग्जाइटी कम हो गई। जब आपको पता हो कि एक ही बार देना है तो एंग्जाइटी खत्म हो गई। और ऐसा भी नहीं कि आई वाज श्योर कि मेरा होना ही है, तो एंग्जाइटी किस बात की, हमें एग्जाम देना है ठीक से, सिंपल अप्रोच। तो तैयारी, तो फोकस वाज गुड, तो आई वर्कड हार्ड।
So what happened was, since now there are two ways in which people prepare. I think it would be the same today also. One is intensively, you study a lot, you select a subject, you take the best books, take the best coaching, you study a lot, and then you start answering the questions. You look at the 10-year papers and इसमें से क्या आया है, what can I write? मेरा उल्टा था. So I approached in a different way, because both these subjects were alien to me, sociology and geography. I had never studied them. I knew that I could not be the best student in sociology and geography in the country, and I could not beat the best at their own game. People who have done their BA, MA honors in these subjects. तो मुझे तो एक जुगाड़ था. दिस वॉज द टूल कि हमें तो एग्जाम निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो इंटेंसिव स्टडी में तो उनको बीट हम नहीं कर सकते हैं. तो आई वेंट द अदर वे राउंड. आई फर्स्ट सॉ द 10-year पेपर्स, क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं उसको नोट कर लिया. अब हाउ मच डू आई नीड टू स्टडी टू आंसर दीज क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द लास्ट 5-7 years? 200 marks, 600 mark questions, 100 marks, 200 words, 100, 600 words, 100 words, one line. That was the pattern. So how much do I need to study to answer these questions? So I joined the dots backwards. Now, I'm not advocating this as a policy. This worked for me because I had a compulsion, there was shortage of time, and plus I had taken subjects which are completely alien to me. तो मैंने ये रास्ता चुना कि पहले जी क्वेश्चन देख लो, अब इनको 5-7 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, इससे आंसर करने के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उतनी पढ़ाई हम कर लेंगे, उतना ही पढ़ लेते हैं. ये नहीं कि पूरा पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन आंसर करें. यू गेट माई पॉइंट? अब मार्क्स से प्यार नहीं हो गया या डरखाइम से प्यार नहीं कर लिया, जितना भर डरखाइम चाहिए ये 4 सवाल देने के लिए, उतना भर डरखाइम पढ़ लेंगे, किताब से या बॉटमोर से, एरलम्बो से, कहीं से भी, या नोट से. उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाए, सिंप्लीफाइड. देन आई वॉज नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसका भी फायदा हो गया. तो आई यूज टू राइट वेरी सिंपल सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंसेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज. That also suited the exam. I think that is what this exam also wants, a very simple and direct approach. They don't want very elegant prose written by you. And as it is, I was intellectually challenged. I was not very capable of writing elegant prose. तो मुझे सूट कर गया, सिंपल भाषा ही मैं लिखता था, वो था. Then I became very mindful of the word limit. मैं इंजीनियर था बाय ट्रेनिंग, मुझे वर्ड लिमिट से बड़ा ऑब्सेशन हो गया. मुझे टीचर ने कहा जी वर्ड लिमिट के नंबर काट लेते हैं. आई एम श्योर इट मस्ट बी हैपनिंग नाउ ऑल्सो. So I became very obsessed. Whenever I would think of an answer, write an answer, I would remain obsessed with the word limit. कि word limit नहीं exceed करना है. And then I picked a very good point कि every answer should have a beginning, a main part and a conclusion. This the teacher told us. Coaching में उन्होंने बताया. अच्छा, मैंने इसको आत्मसात कर लिया. Whenever I would think of an answer, mentally or while writing, I would always, चाहे 100 word का है चाहे 200 word का है, always think of a beginning, always think ये middle point होगा, conclude अब कैसे करूँगा. This is how I'll conclude it. This became a second nature. So I started thinking like this, kept on thinking like this all the time while studying. अगर अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे लिखूंगा. पढ़ रहे हैं, साथ में सोच रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में. तो this was an advantage because I think and this is, and at that time I was not planning it like this. उस समय मैं नहीं सोच रहा था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ. ये मैंने किया अब when I deconstruct it after 20 years, so I can say that this is how I did it. तो अब तो मेरे पास टाइम बहुत है ना, बैठ के सोचते रहते हैं कैसे हुआ दिन भर. उस समय तो टाइम था नहीं इतना कि मैं सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूं. बट दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग. नाउ व्हेन आई लुक बैक इन टाइम, दीज आर द राइट थिंग्स दैट आई डिड. एक और अच्छा काम मुझे जो लगता है मैंने किया, वो था कि मैंने जब सब्जेक्ट चूज किए तो उनमें गैप बड़ा कम था एग्जाम में. मुझे उस समय नहीं ख्याल आया, जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जब मेंस देने लगा तब समझ में आया. सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी और जीएस उस समय 1 दिन और 2 दिन इतना ही गैप था. मैनी पीपल यूज्ड टू टेक साइकोलॉजी इन दोज डेज विद मैथ्स और विद फिजिक्स, बिकॉज उसमें 20-21 दिन बाद होता था साइंस पेपर्स के. आई डोंट नो हाउ इट इज नाउ. सो दैट वाज अ मिस्टेक मेड बाय मी. आई डिड नॉट प्लान कि अगर जब मेंस देना होगा तो ये गैप जो कम है तो ये मुझे रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी. बट अब द डाई वॉज कास्ट. मैं तो सब्जेक्ट चूज कर चुका था, पढ़ चुका था. 2-3 महीने बाद मुझे ये बात समझ में आई. किसी ने बताया कि यार जब मेंस अगर प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो मेंस में टाइम बड़ा कम है जो सब्जेक्ट लिए. बट द गुड थिंग दैट आई डिड वॉज आई डिड नॉट चेंज द सब्जेक्ट. आई डिसाइडेड कि अगर मुझे 2 ही दिन मिलेंगे या 3 दिन ज्योग्राफी से पहले, तो मैं पढ़ाई अब शुरू से ही ऐसे करूंगा कि अगर मुझे 3 दिन में रिवाइज करना पड़े तो नोट्स को इतना सिंप्लीफाई कर लूंगा कि 3 दिन में मैं एटलीस्ट एक रीडिंग कर लूंगा सारे की. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू माइट हैव स्टडीड द एंटायर ईयर, पर अगर तुम लास्ट 2-3 दिन में वो पढ़ के नहीं जा पाओगे तो इट विल अफेक्ट योर आंसर्स. ये होना ही है. सो दैट इज वन मोर गुड थिंग दैट आई डिड. सो आई स्टार्टेड सिंप्लीफाइंग. जैसे डायग्राम बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं ज्योग्राफी में, तो रादर देन मेकिंग इट exactly as it appears in the book, I would first make a simplified diagram as I would draw it from memory, and then make that the standard diagram. Whatever I can draw from my memory, that becomes the main diagram. Now I will draw it like that only, because that is how I will draw it in the exam. If you start going for perfection, you are wasting time, and in the examination hall you will not be able to do it. So I made my preparation very, very close to how I would be able to do it in the examination hall.
So it was not input oriented, it was result oriented. Now I'm giving this jargon to you. I was not thinking like that at that time. मैं ऐसा नहीं सोच के चल रहा था कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. मेरी मजबूरी थी, मेरी सोच ही ऐसी थी कि जल्दी काम हो, जुगाड़ू काम हो, कम से कम में हम पूरा निकालें जितना निकलता है. बिकॉज पढ़ने की आदत काफ़ी कम हो चुकी थी, तो कमिंग बैक टू स्टडीज वॉज समथिंग टफ फॉर मी. आई वर्कड हार्ड, आई डिड माई बेस्ट, but I tried to minimize the effort wherever required. So that is how it was. These were the few steps. Then time was important. I would time my answers always. I was very obsessed with this. If I have to write an answer, I should be able to finish it in X time, because you have to give so many questions in the mains, so many in the prelims. So I would always time my answer, always, whether giving a test for the prelims, whether giving a test for the mains, or even if writing randomly. जब आप खुद भी 10 ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि चलो आज ये 4 क्वेश्चन मैं लिख के देखता हूँ और किसी टीचर से दिखवा लूंगा, इवन देन आई वुड यू टाइम दम. नॉट कि रैंडमली बैठ के अच्छा आंसर लिखना, नहीं, ये 7 ही मिनट में करना है, चाहे टीचर कहे क्या बकवास लिखा है, कोई बात नहीं, हम करेंगे 7 ही मिनट में. योर माइंड, सो होता क्या है, समटाइम्स व्हेन यू राइट वेरी गुड आंसर्स बट यू टेक 15 मिनट्स एट होम एंड शो इट टू द टीचर, टीचर इज वेरी हैप्पी, बट उस दिन 15 मिनट नहीं मिलने वाले. तो माइंड जो है ना, जैसी आदत डालोगे वैसा ही हो जाता है. इफ यू पुट इट अंडर प्रेशर इवन वाइल प्रैक्टिसिंग, इट विल गेट यूज्ड टू दैट. तैयारी और एग्जाम को कई लोग सेपरेट कर लेते हैं. प्रेपरेशन अलग हो गई और एग्जाम वाला दिन अलग हो गया. हम इतनी तैयारी करेंगे एग्जाम वाले दिन, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू ट्राई एंड सिमुलेट दोज कंडीशंस ऑल द टाइम. व्हेनेवर यू स्टडी, व्हेनेवर यू राइट एन आंसर, ट्राई टू सिमुलेट दोज कंडीशंस. एक्चुअल कंडीशन तो कभी बना नहीं पाओगे, बट गो एज क्लोज एज पॉसिबल. अपने आप को उतने प्रेशर में ले जाओ. तो मैंने उसको आदत बना लिया. तो दैट इज द how my preparation went. It was a serious preparation. I was completely obsessed with it. I didn't take it lightly, didn't waste a single day. But these are the methods that I followed. Now we come to the other part. I'll take an analogy from battles and wars. लड़ाई से बहुत कुछ हम सीखते हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं. Because war or battle, is a microcosm of life itself. It's a miniature version of life itself. Battle of Plassey में, Clive had only 3,000 people, 900 Europeans, 3,000 soldiers, as compared to 50,000 with Sirajuddaula. In the famous Battle of Agincourt in 1415, Henry V, the Englishman led by him, were faced with very vast numbers of the French army. Babur had only 14 to 16,000 people when he faced Ibrahim Lodi in the first Battle of Panipat. But they all won with much lesser resources. How did it happen? Because when the resources are less, then you are forced to become innovative. Then a sudden charge by the cavalry, a sudden rush of blood, a sudden bold move can win you the day. Same is true with life. कभी कभी जब आपके पास साधन कम हो, समय कम हो, तो कोई बोल्ड मूव आपको हेल्प कर देता है. जैसे लड़ाई जीतने में मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था, जब आदमी संख्या आपके पास कम हो, फिर भी कई लोग युद्ध जीत गए बड़ी बड़ी फौज से. कैसे जीत गए? किसी ने कोई ऐसा सडन डिसीजन लिया, कहीं उनकी किस्मत साथ आ गई. इट हैपन्स विद लाइफ ऑल्सो. सो डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद द रिसोर्सेज. नोट्स कितने हैं मेरे पास, मैंने कितना किया है. You always think that whatever you have got, you give your best shot in the examination hall with that. Sometimes we are so obsessed with the preparation that our morale is low when we go to appear in the exam. उस समय आप बिल्कुल फॉर्म में होने चाहिए, उस दिन, उस समय, ready to engage. My good thing was I was very keen on appearing in the exam. चाहे प्रीलिम्स हो जाए, I look forward to it. कब आए और मैं एग्जाम दूं जाके और खत्म करूं इसको. इसलिए नहीं कि पिंड छूटे एक तरह का, तैयारी करके, पर यह नहीं कि आप इसको फैल गए अब यही जीवन है, नहीं, इससे अपना पीछा छुड़ाएं और आगे बढ़ें जीवन में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में. आई विल कम टू इट अगेन. नाउ आई कम टू द a very important aspect, the emotional aspect of dealing with this exam, how I dealt with it and how I see people dealing with it. जो भावनात्मक एक दृष्टिकोण है इस एग्जाम को देने का. This is a very tough exam, you all will agree. It's long drawn, so you have to sustain your motivation for long periods of time. वो जो आजकल दिखाता है ना कि एकदम pumped up, adrenaline flowing, come on you can do it, टी-शर्ट पे लिखा है yes you can do it, when the going gets tough the tough get going, बेडरूम में लिख दिया, दीवार पे साट दिया, पिताजी के पीछे लिख के लगा दिया, यू कैन डू इट, कम ऑन. ये सब नाटक है. ये सब कोई 2020 खेलने जा रहे हैं मोहल्ले में तो ठीक है, छत से लोग देख रहे हैं आपने छक्का मार दिया, बट यूपीएससी की तैयारी जिसमें साल, 1.5 साल, 2 साल लगने वाला है, ये इस तरह से नहीं चलने वाला है. एड्रेनलिन फ्लो विल नॉट गेट यू थ्रू. तो ये नाटक नौटंकी दिस सोशल मीडिया पे बहुत चलता है. मैंने आपसे कहा ना, कम ऑन हाउ आई डिड इट, रियलिटी टीवी टाइप का अपना दुखड़ा रो रहे हैं बैठ के, उससे कुछ नहीं होने वाला. आप जो भी ड्रामा करना कर लीजिए, पुशअप कर लीजिए, पहाड़ी चढ़ जाइए, अंगारे पे चल लीजिए, उससे यूपीएससी तो क्लियर नहीं होगा.
वो तो पढ़ने से ही होगा और आंसर लिखने से ही होगा, ठीक है, बाकी सब तो नाटक है। एंड डू नॉट फॉल फॉर दैट ड्रामा। सो दिस इज वन एक्सट्रीम। द अदर एक्सट्रीम इज टू चिल्ड। भाई साहब सुबह उठे, नहाए, अखबार पढ़ी फैल के 3 घंटा, उसके बाद विदेश नीति पे चर्चा की, 2 आदमी का सिर फोड़ दिया सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, न्यूक्लियर पॉलिसी पे बहुत गमगीन है कि भारत कहाँ जा रहा है, देश के बारे में चिंतन कर रहे हैं जैसे कि देश इन्हीं को चलाना है, उम्र बीतती जा रही है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट निकलते जा रहे हैं, मगर वो देश के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में उनको ध्यान नहीं है, एग्जाम के बारे में जानकारी उनको बहुत है, लोग आते हैं उनका पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेके आगे सेलेक्ट होकर निकल जाते हैं, वो वहीं के वहीं भाई साहब बैठे हैं। ऐसे कई भाई साहब आपको मिलेंगे इस तैयारी में, उनको सब पता है कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी कोचिंग में आपको जाना चाहिए, खुद वो कुछ नहीं करते हैं। टॉपर्स की जीवनी उनसे लिखवा लीजिए आप, पर अपना उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये रास्ता है, मील का पत्थर मत बन के बैठिए, गो अहेड, दिस इज द जर्नी that you have to cross and there is a destination that you have to reach. Do not start enjoying the journey. Some people start enjoying the process and the prospect of being an aspirant. It's very important what I am telling you. Do not start enjoying this process. You have to reach, this is just a path to reach a certain goal. Always be mindful of that. एक तो ये है. Second, don't start romancing the subject. सब्जेक्ट से प्यार हो गया, वो इतना प्यार हुआ सोशियोलॉजी पढ़ के पागल हो गए, मार्क्स ही पढ़े जा रहे हैं, JNU में मतलब DU में और IIT में पागल हो गए, उनका दिमाग इतना पढ़ा उन्होंने कि टीचरों से भी ज़्यादा जान गए। उससे क्या करेंगे आप? उससे 30 नंबर का या 20 नंबर का सवाल आना है, ये देखिए हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एक्सपेक्टिंग टू गेट फ्रॉम दैट, उतना ही पढ़िए उसको। दैट इज द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नीड। एंड हाउ कैन यू प्रोसेस इट इन योर ओन वर्ड्स? कैन यू फॉर्मुलेट अ 200 वर्ड आंसर और 100 वर्ड आंसर और 50 वर्ड आंसर एज इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव? दैट इज द चैलेंज। पढ़ना चैलेंज नहीं है, पढ़ के उसकी आउटपुट निकालनी है जो वो क्वेश्चन में मांग रहा है। Precisely you have to answer the question. He is not testing your knowledge, he is asking you, please give me this information in as many words, with a beginning, with a main body and with a conclusion, in 7 minutes, in 5 minutes, in 4 minutes. You get me now? So orient your mind towards that. वो पढ़ाई का रस ले रहे हैं, वो आंखों में आंसू आ गए पढ़ते पढ़ते, भाव विभोर हो गए, क्या लिखा है कवि ने, अरे भाई कवि लिख के मर गया 4 साल पहले, आप यहीं बैठे बैठे मर जाएंगे। अभी तक तैयारी कर रहे हैं कई लोग वहां बैठे हैं। तो मतलब you see, please understand this thing. Don't romance the subject. Use it as a tool, as I did. I was very dispassionate and I told you I chose subjects that I knew nothing about. ना मुझे उनसे कोई प्यार था, ना मुझे किसी सब्जेक्ट से कोई प्यार था। मुझे नौकरी चाहिए थी, मुझे उससे निकलना था जिस स्थिति में मैं था। मुझे IPS ऑफिसर बनना था, उसके लिए एक टूल था, उसका उपयोग किया और आगे बढ़ो। लड़ाई लड़नी है, अब लकड़ी की तलवार और शील्ड लेके आप बैठे हैं तो नहीं होगा। जो भी लोहा लक्कड़ मिलता है उसे मारो, ईंटा फेंको, आगे बढ़ो। That is the approach that you have to have. A mercenary approach, absolutely dispassionate. Do not enjoy it. घर में बड़ा मजा आ रहा है कि बाबू तैयारी कर रहे हैं, बाबू तैयारी कर रहे हैं, इसी में खुश हो रहे हैं। भाई तैयारी करना कोई काम थोड़ा ही है, आप तैयारी को एंजॉय मत कीजिए। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड इज, सम पीपल दे एंजॉय द प्रोसेस, आई टोल्ड यू, सम पीपल फॉरगेट अबाउट द प्रोसेस, दे अराइव एट द डेस्टिनेशन इवन बिफोर द जर्नी हैज स्टार्टेड। They start behaving as if they have become a district magistrate or a superintendent of police. आप उनको देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है तैयारी में जैसे वो पार कर चुके हैं, दे आर ऑलरेडी, वो सरकारी अफसर बन चुके हैं, बड़े गंभीर हो गए हैं, वो बहुत कम वो बात कर रहे हैं आपसे, वो ऑलरेडी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। ये भी एटीट्यूड ठीक नहीं है। रिमेंबर दैट यू हैव टू रीच देयर, जब तक आप नहीं पहुंचे आप नहीं पहुंचे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट एक्वायर एनी persona prematurely. Please wait for the result to come. Please wait for the final result, only then you start dreaming about how you will perform that job. During the preparation, do not think about how you will work as a DM, SP, etc. Please only think how you will qualify the exam. Do not waste your time daydreaming about the job. If you have to dream about the process, how you will write the answer. That is the difference between somebody who is focused and somebody who is just going through the process. You get my point? That's very, very, very important. That is emotional aspect. एक उसमें इंपॉर्टेंट बात है, समथिंग विच आई लैक्ड। एडवांटेज क्या था कि मैं ज़्यादा एंशियस नहीं हुआ, मैं ज़्यादा नर्वस नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज देयर ओनली फॉर 1 अटेम्प्ट। इट्स ओनली आफ्टर आई क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट आई अपीयर्ड अगेन एंड देन आई गॉट द ऑल इंडिया रैंक 34 द सेकंड अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट नहीं होता तो मैं दूसरा भी नहीं दे पाता, बिकॉज आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू मैनेज इट। तो मैं इतना एंशियस नहीं था। मैं एंशियस तब हुआ जब मेरा मेंस भी हो गया, जब इंटरव्यू दिया और रिजल्ट आना, देन आई वॉज वेरी नर्वस एंड एंशियस एंड ऑल दैट इमोशनली आई हैड दोज थिंग्स कि what will happen if I don't qualify. तब तक मैं बिल्कुल मस्त था। So that went in my favor. I was able to prepare without any stress.
बट दैट डजंट हैपन नॉर्मली व्हेन पीपल आर देयर फॉर द लॉन्ग हॉल की 2 बार देना है, 3 बार 4 बार, तो स्ट्रेस कंटिन्यूस एक रहता है, दैट यू हैव टू अवॉइड. मेरा एक और वीक पॉइंट इसमें क्या था एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, आई एम एन एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड. मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल विशुद्ध नास्तिक हूँ. उसका तो बड़ा फायदा है, ठीक है आप नहीं मानते हैं, बड़े रैशनल हैं, पर नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि व्हेन यू आर अपीयरिंग इन एग्जाम लाइक दिस, then you need that kind of an emotional support which believers have, which the faithful have. I saw very closely my friends who had the faith, who believed in God, irrespective of the religion. This emotional anchor was there with them. सुबह उठे, धूप अगरबत्ती जलाई, अपनी नमाज ही पढ़ी किसी ने, जो भी किया, उससे उसको बड़ा सहारा मिलता है. He feels that there is somebody watching over him and somebody will help him. हमें तो पता था कोई हमको नहीं देख रहा है, ना हमको मदद मिलनी है, तो जो करना हम ही को करना पड़ेगा. ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर when you are passing through that period, so then it is very tough. To be a rational and reasonable man is very good when you have succeeded in life. But when you are clutching at straws trying to succeed, then it can be very tough. So your faith is also tested and your lack of faith is also tested. आप कितने बड़े नास्तिक, इसकी परीक्षा तभी होती है जब आप गरीब गुरबा हमारी तरह के बस में बैठ के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप हाथ में कुछ है नहीं, तो सोच रहे अगर मैंने भी कहा कि भगवान अगर तू है तो मदद कर ही देना. नहीं है तो कोई बात नहीं, पर है तो हमसे गलती हुई, हम तो बच्चे ही हैं तेरे लिए. तो हमने भी हनुमान जी का मंदिर आता है यूपीएससी के पास, वहाँ हमने भी जाके सर झुकाया कि देखो हमसे अब तक जो हुआ सो गलत हुआ, अब तुम तो भगवान हो, तुम्हारे लिए क्या है, माफ कर दो. और जब हो गए सिलेक्ट तो फिर नास्तिक हो गए कि आई डोंट बिलीव इन गॉड. ये सच्ची बात है एकदम, बिकॉज माई मदर वॉज अ वेरी फर्म बिलीवर. सो वो कहती, तो हमने कहा कि भाई जब एग्जाम है तो हाथ सर झुका दो, कौन देख रहा है? कौन सोचता है कि सजदा कबूल हो, कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया. तो अंदर की क्या बात है मैं आपसे आज शेयर कर पा रहा हूँ, बट मन की बात मन में आदमी की होती है. सो ऑल दीज थिंग्स दैट आई कैन थिंक ऑफ, ऑल दीज स्मार्ट एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव हैपन ओनली बिकॉज आई मेड इट इन लाइफ. उस समय तो ये सब बातें सूझती नहीं आदमी को, तब तो आदमी वैसे ही घबराया घूमता है, चाहे मैं हूँ या आप. तो दिस इज वन थिंग विच आई वुड एडवोकेट. नाउ इन द एंड यू नो आई विल कम टू द रोल ऑफ डेस्टिनी. दिस इज समथिंग दैट पीपल जनरली डोंट टॉक अबाउट. इट इज एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इट इज द प्रोवर्बियल एलिफेंट इन द रूम. वो अंग्रेजी में कहावत है कि कमरे में एक हाथी है जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए. एक ऐसा विषय जो सबको पता है पर इसके बारे में बात कोई नहीं करता है. भाई कोचिंग में बात करना गलत है, पीपल से अगर किस्मत ही है तो फिर आप काहे की कोचिंग खोल के बैठे हैं, आई नो थिंग्स लाइक दैट. और एंड बट आई विल टेल यू ऑनेस्टली, यस डेस्टिनी डज प्ले अ रोल, लक हैज अ रोल, बट द गुड थिंग इज दैट नोबडी नोज व्हाट रोल इट विल प्ले. लेट मी अश्योर यू दैट nobody can predict what will happen to you. And I'll give you examples about this. You see, when I was preparing for the exam, I told you I was low on confidence when I started out, and I was not very sure that I'll make it. But I tried to I did my best. The good things were I was a rational person, very reasonable, not superstitious at all, and I knew my limitations. So as I explained to you, my strategy and my tactics was completely in consonance with my limitations. जो मेरी मजबूरियां थी उसी को मैंने यूज करके अपना काम किया. I didn't waste my time in thinking about अब क्या होगा, भाई ये है तो जो हमारे हाथ है इसी से हम लड़ेंगे, बात खत्म. That was a good thing. But luck does play a role. How it plays a role? जब मैं तैयारी करने आया उसी साल से स्केलिंग पॉलिसी लोग बताते हैं यूपीएससी ने शुरू की. 99 और 2000 जब मैंने एग्जाम दिया और मैथ्स के एग्जाम छोड़े, मैथ्स में स्केलिंग करके और साइंस में स्केलिंग करके कुछ उन्होंने उसको रैशनलाइज किया. दैट इज व्हाट पीपल से. सेकेंड थिंग, जैसे मैं इंटरव्यू देने गया, आई विल शेयर विद यू माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मिस्टर पीसी होता वाज द चेयरमैन. तो मेरा आईपीएस वाज माय फर्स्ट चॉइस, विच इज अ वेरी रेयर थिंग. मेनी पीपल विल सी दिस ऑन यूट्यूब एंड तुम देखोगे लेक्चर्स में कि मैं आईपीएस बनना चाहता था, बट हार्डली 2 or 3% who want to become IPS officers. Mostly want to join the IAS, and when they don't make it to the IAS, they join the IPS. That's a fact. But I was one of those rare people who actually wanted to join only the Indian Police Service. तो वो चॉइस फॉर्म में लिखा रहता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं. तो सो मैं जब भी कोई मॉक इंटरव्यू देता था तो ऑल माई फ्रेंड्स वुड से कि यार इट्स अ वेरी यूनिक केस, सो यू विल बी क्विज्ड ओनली अबाउट दिस, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर. तो फिर मैंने अपने पूरे जवाब तैयार कर रखे थे कि सर जब मैं पंजाब में बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा इतना आतंकवाद है, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ. ये सब मैंने पूरा सोच रखा था, पूरा झूठ, पर पूरा मैं तैयार था इसके लिए. मेरी किस्मत देखिए, जब मैं बोर्ड में गया इंटरव्यू में और 2 साल से 1.5 साल से मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही बोलूँगा, और मैं इंटरव्यू तक पहुँच भी गया हूँ. और वो पीसी होता साहब चेयरमैन थे, तो एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि सो आईपीएस इज योर फर्स्ट चॉइस, व्हाई सो. तो मैं जैसे ही शुरू हुआ रटा पूरा कि सर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन दी पंजाब इन दी 80s, तो चेयरमैन को शक हो गया, बोले कि लगता है याद करके आए हैं, इनसे कुछ और पूछिए. तो पूरी इंटरव्यू का बैठ गया. जो तैयारी थी सब वो, अच्छा एक तो आदमी साइकोलॉजिकली टूट जाता है कि मैं तो साल भर से यही सोच रहा था कि मुझसे कोई पूछे और हम उसको लपक ले.
तो इंटू का भट्ठा बैठ गया, मुझे 165 मिले 300 में से, तो मैं रेलवे अकाउंट्स में पहुंच गया। ये सच है बिल्कुल। अगली बार जब सेकंड टाइम फिर मैं नेचुरली विद मोर कॉन्फिडेंस जब इंटू तक पहुंचा, तो आई रिमेंबर दिस वाज अ डिफरेंट बोर्ड, दे अगेन आस्क्ड मी, after your class we will have one question answer session. I'll take yeah. So they asked me again, कि the board asked me कि उन्होंने ये नहीं पूछा, आईपीएस पूछा ही नहीं, तो उन्होंने ये पूछा कि आप तो रेलवेज में आ गए हैं, आप दोबारा अपीयर हो रहे हैं, तो इफ यू डोंट मेक इट विल यू कंटिन्यू इन द रेलवेज? तो नाउ आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई टोल्ड देम वेरी यस सर आई विल कंटिन्यू इन द रेलवेज, आई एम नॉट गोइंग टू। अब मैंने उसके बाद फॉर्म भरा भी नहीं था। आई सेड आई हैव एन अटेम्प्ट लेफ्ट बट आई वोंट अपीयर। तो व्हाई? सो आई सेड कि सर इट्स इनफ टाइम, आई एम ऑलरेडी 26 years old, इट इज अबाउट टाइम दैट आई स्टार्ट वर्किंग ऑल्सो, माई फैमिली इज वेटिंग फॉर मी, सारी ज़िंदगी मुझे पढ़ाते ही रह गए, अब हम तैयारी पे तैयारी कितनी तैयारी करें, तैयारी के माँ बाप सूखने पड़े हैं धूप में और हम तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कहा जी अब मैं और तैयारी नहीं करने वाला हूँ, अब मैं इसमें नहीं हुआ तो मैं रेलवे ज्वाइन करूँगा, और कर चुका हूँ और मैं रेलवे में आराम से नौकरी करूँगा। मैंने बिल्कुल उनसे ये नहीं कहा कि आईपीएस मेरा सपना था और सपना मैं पूरा करके रहूँगा, ये सब झूठ है, ऐसा सच भी नहीं था। मेरी बस हो चुकी थी, मैं एक तो मस्ती की, 4 साल रुड़की में पढ़े नहीं वहाँ पर, फिर नौकरी छोड़ के तैयारी की, फिर रेलवे में आए, फिर दोबारा दिया, अब फिर इंटरव्यू तक पहुँच गए, अब फिर तुम पूछ रहे हो कि अब क्या करोगे, तो अब नहीं देना तो ना मत दो, हमको नहीं बनाना आईपीएस तो मत बनाओ, ना तुम्हारा कुछ घटेगा ना हमारा कुछ घटेगा, हम भी नौकरी कर लेंगे रेलवे की, ये फैक्ट है। मैंने ऐसे नहीं कहा, बड़ी पोलाइटली और अंग्रेजी में कहा कि सर आई विल कंटिन्यू टू वर्क इन द रेलवेज एंड आई विल डू माय बेस्ट, सो दैट्स इट, बट आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द सेकंड अटेम्प्ट एंड दैट वाज द डिफरेंस व्हाई आई जंप टू रैंक 34। सो ये है। अब अगेन आई कम टू अ बैटल एनालॉजी, एग्जांपल फ्रॉम अ बैटल और अ वॉर। उसमें आई विल एक्सप्लेन। उस समय सीट्स बड़ी कम थी, आई टोल्ड यू 270 सीट्स थी जब मैंने अपीयर हुआ, अगले साल में 300 सीट्स थी, आजकल बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से कई लोगों ने अटेम्प्ट ड्रॉप कर दिया व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। सो मेनी पीपल सेड कि दिस इज अ रॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर, सीट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फॉर दोस 2-3 years, द सीट्स वर वेरी वेरी लेस, यू चेक इट, यू विल फाइंड आउट, लेस देन 300, बट आई स्टिल वेंट अहेड विद माय प्लान्स। एज आई टोल्ड यू कि आई वाज डेस्परेट टू गेट दिस बोगी ऑफ माय बैक, कि मुझे एग्जाम दे के इसको खत्म करना है, चाहे सीट 2 बचे या 4 बचे, दैट काइंड ऑफ डेस्परेशन आई हैड। सो मेनी पीपल हु प्लान अ लॉट, बहुत सोच के चलते हैं, उन्होंने 2-3 साल वो अटेम्प्ट छोड़ दिया अपना, तो मैंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू शेक्सपियर ने लिखा है जूलियस सीजर में कि देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून। देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून। एक टाइड आती है, जब सही समय पे उसमें आपने नाव डाल दी तो आप निकल जाओगे। अब वो आपको नहीं पता वो कब आएगी, आप अपना पतवार जो है खड़ा रखिए, जब हवा आएगी तो आपको ले चलेगी। ज़्यादा प्लान मत कीजिए कि हवा 4 बजे चलेगी तब डाउन रखो, हवा कब चलेगी आपको नहीं पता है, दैट इज डेस्टिनी। Whether it comes, when it comes, you don't know. So you keep your sails ready. The wind will come, it will take you. But if you plan too much and are too clever by half, you never know. You might be making a mistake. So do not go by too many statistics and what is happening here and what is happening there. You never know what lies in store for you. You do your best and don't be too much bothered by all this noise. How many seats, the pattern of the exam, all this is noise. This affects everybody. So it affects nobody. Don't worry about these factors. Anything which affects everybody affects nobody, ऐसे मान के चलो। तो ये एक चीज़ है। नेपोलियन वाटरलू की जंग में मुझे हिस्ट्री में बड़ा प्यार है और मैं लड़ाइयों जंगों के बारे में बड़ा पढ़ता रहा हूँ बचपन से। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुई थी 18 जून को, तो उसमें क्या हुआ था कि इट चेंज यूरोपियन हिस्ट्री। नेपोलियन was defeated by Duke of Wellington and his threat was over and Europe felt very free. So what happened that day was that it had rained the previous night and the ground had got wet. So he was a master of artillery, Napoleon. He thought a lot and he delayed the use of artillery that morning. Why? Because he thought the ground is wet and my big guns will get stuck in the mud. मेरी बड़ी जो तोपें हैं वो फंस जाएंगी मिट्टी में। उसने डिले किया अपनी आर्टिलरी को फील्ड में लाना। That delay was very crucial because Blucher, the German general, he was on his way to join Duke of Wellington. Napoleon was not aware of that. तो डिले जो उसकी वजह से ब्लूकर आके ज्वाइन कर गया विलिंगटन को, देयर आर्मी स्ट्रेंथ इंक्रीज एंड फाइनली दे वर एबल टू डिफीट नेपोलियन। देयर वर मेनी अदर फैक्टर्स बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन क्रूशियल फैक्टर दैट ही डिलेड, ही थॉट अ लॉट एंड वाज नॉट एबल टू यूज हिज आर्टिलरी इन टाइम। वो जो दुविधा में वो रहा, नहीं कर पाया। तो जीवन में कई बार दुविधा जो है, डिले जो है, वो हार्म करता है। आई रिपीट दैट ऑल दैट आई हैव सेड टू यू is not, it doesn't mean that it will work for you also, it worked for me. So I'm just I narrated my story to you to just give you an example of how I did it. Some of these things might be useful for you, some might not be useful for you. So don't bother about that. In the end, I'll just say कि
मेरा इसलिए हो पाया सिलेक्शन बिकॉज मैं मानता हूँ कि मेरे माँ बाप की जो दुआ थी, मेरे पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स थी, वो सबसे बड़ा फैक्टर है. ऑफ कोर्स द सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, द गर्ल आई लव्ड, एज आई टोल्ड यू, कमिंग बैक टू हर, शी इज नाउ माई वाइफ, सो आई कैन मेंशन इट openly to you. It was a very big factor. That support mattered a lot to a man like me who was very low on confidence when he began this journey. But the biggest factor without doubt is the blessings of my parents. मेरे माँ बाप की जो दुआ थी, मेरे साथ उनका जो आशीर्वाद था, मैं ये मानता हूँ कि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं कि मैं क्यों सफल हो पाया. मुझे और कोई कारण समझ में नहीं आता. I was a very mediocre student and I've been a very mediocre person. In fact, my entire life has been a tribute or an ode to mediocrity. अगर मुझे देखा है तो मैं साधारणता का पर्याय हूँ, अति साधारण. मगर क्यों हो गया? मैं इसे मानता हूं कि दुआ थी माँ बाप की, उनका आशीर्वाद था, और तो कोई कारण नहीं है. आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दें. मेरी फाइनल वर्ड्स आपको यही हैं. डू योर बेस्ट, डू नॉट थिंक टू मच, जस्ट थिंक अबाउट स्टडिंग एंड थिंक अबाउट द आंसर्स दैट यू आर गोइंग टू राइट और एक्सपेक्टेड टू राइट. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन. गो वन डे एट अ टाइम. एक एक दिन करके चलिए. बहुत लंबा प्लान करके मत चलिए. रोज़ पढ़ाई कीजिए, रोज़ मेहनत कीजिए, अपने आंसर्स को टाइम कीजिए, अपने आंसर्स को रोज़ लिख के देख लीजिए. सोचिए आंसर शुरू करूंगा तो कैसे बिगिन करूंगा, कैसे बीच में क्या एंड कैसे करूंगा. हर बार यही सोचिए, हर बार यही सोचिए. पढ़ते हुए भी यही सोचिए. पढ़ाई में इतना मत लीन हो जाइए कि आंसर का सोच के पढ़ाई कीजिए. पढ़ के मत आंसर दीजिए. ठीक है? और इन एनी केस, इवन इफ यू कांट मेक इट, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एबिलिटी और योर कैरेक्टर. दिस एग्जाम, दिस इज जस्ट एन एग्जाम. IAS IPS आप नहीं बने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बहुत से लोग IAS IPS बनने के बाद, मैं जानता हूं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है जिंदगी में. Although it's a great way to serve the country. And there are many people who could not make it, my friends, who did something else and who are very happy, doing very well in life. Whether they are in teaching or whether they are in business or whether they are in the corporate sector. So this is not the end of life. ये बड़ा important है समझना. इसी भावना से लड़ाई करनी है. Do your best and move on in life. नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. जीवन का इसमें अंत नहीं होगा. There are many people much more capable than me who could not make it in life. And there are many people much worse who would have done even better. ये fact है, मैं आपको आज बता रहा हूँ. इसलिए नहीं कि you are sitting here. इसलिए because it's a fact. So even if you are not able to make it, doesn't mean that you are not good enough or somebody who's made it is definitely better than you. So you must remember this thing and appear with an open mind and do not take too much of stress. Remember that this is not the end of life. You will make it somewhere else if not here. And in the end, I will say what I always tell to young people, the immortal lines of Sahir Ludhianvi. उन्होंने कहा है, मैं आपके लिए बोलता हूँ, तू अपनी अदाएं बख्शने, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ. सो वट एवर आई थॉट फॉर मी, जो भी दुआ मैं अपने लिए चाहता था मैं आपको दे रहा हूँ. भगवान करे आपके सारे सपने सफल हों, पूरे हों. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. थैंक यू सो मच. If there are any questions, I'll be happy to. Sir, why some of your friends are unhappy with this job? Not my friends, but many people I know. See, getting into a profession does not guarantee lifelong happiness and satisfaction. It is one thing what you think about life now. आपको अभी लगता है इस स्टेज पे कि हम अगर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम जीवन भर सुखी रहेंगे. ऐसा नहीं होता. जीवन में सुख के कई मापदंड हैं, कई तरह से सुख हम प्राप्त करते हैं. तो इट्स नॉट सिंपली फॉलोइंग वन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन कि आप परमानेंटली सुखी हो गए. सेहत एक फैक्टर है, मन की शांति एक अलग फैक्टर है, आपके पारिवारिक सुख एक अलग फैक्टर है, माँ बाप की सेहत एक फैक्टर है, आपके बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई, बहुत से फैक्टर्स जिनको आप सुख और दुख मिल सकता है. सो अभी आप बहुत यंग हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. बट मैं 45 साल 40 साल का आदमी हूँ. आई अंडरस्टैंड दिस मच बेटर देन यू. सो देयर आर मेनी पीपल हु क्वालिफाई दिस एग्जाम who are very successful in worldly terms, but they not be very happy individuals. There are many other problems that they face. So ये कोई जीवन का अंत नहीं है कि जो एग्जाम दो पार्ट में दुनिया बदल गई, एक जो सिविल सर्विस क्वालिफाई कर गए और एक जो नहीं कर पाए. बस दो तरह के लोग हैं. ऐसा नहीं है. जो नहीं भी कर पाए, some of them have done exceedingly well. Some of people very close to me who were with me in GSRI, and some people who qualified also, some of them did not have a very good life later on because of various factors. ये एक mixed bag है लाइफ में. You cannot be sure that just qualifying an exam will assure lifelong happiness and satisfaction. It's not like that. That is what I meant to say. Not that कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड. आई एम लिविंग माई ड्रीम एवरी डे. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा सबके साथ हो. कई लोग उतने खुश नहीं भी रह पाते नौकरी में आने के बाद. प्लीज. Sir, very good evening. Sir, I wanted to know about the newspaper reading.
Can it be compensated by the daily news analysis on YouTube and some things like that? हाँ, that's a very good question. Actually, I forgot to mention you, we did not have anything like the internet in those days. Internet was there, पर वो 60 रुपये घंटे पे चैटिंग होती थी, बड़ा महंगा था. तो अब चैट का और वो खुलता भी था ना जब वेबसाइट, तो 10 मिनट में खुलता. तो बोला आदमी बोलता मेरे 10 रुपये तो गए, एक वेबसाइट खुल रहा है. सुबह से 3 आदमी बैठे हुए हैं और वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है. दैट वाज द स्पीड वी हैड, डायल अप कनेक्शन एंड ऑल दैट. सो प्रिपेयरिंग यूजिंग इंटरनेट वाज अननोन टू अस. वी हैड नो ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन. जो भी किताबें थी फिजिकल फॉर्म में थी या नोट्स से दोस्त से मांग के लाए, फोटो कॉपी किया, ये सब ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं हमारे लिए. सो यू आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस. अब आदमी कहीं बैठ के भी तैयारी कर सकता है. वी डिडंट हैव दैट ऑप्शन. नहीं, देखो रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आई एम स्लाइटली ओल्ड स्कूल इन दैट. आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज. मेरे हिसाब से दुनिया कितनी भी बदल जाए, जो आदमी पढ़ता नहीं है वो लिख नहीं सकता है. यू कैन नॉट राइट इफ यू हैव नॉट रेड इट. यूट्यूब इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग. ये मेरा व्यू है. देयर विल बी मेनी पीपल हु माइट नॉट एग्री विद मी. यूट्यूब या ऑनलाइन लेक्चर्स आर नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग. इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, इफ यू आर नॉट एबल टू स्लॉग विद बुक्स, आई डोंट थिंक दिस इज द एग्जाम फॉर यू. अगर आप यूट्यूब पे बड़े खुश हैं तो फिर आप यूट्यूब पे ही अपना करियर बनाइए. आप सिविल सर्विस में वैसे भी आपको लिखना पड़ना ही पड़ेगा. वहाँ यूट्यूब से तो नौकरी चलने वाली भी नहीं है. हर हमारे कुछ यंग ऑफिसर चलाते हैं यूट्यूब पर अपनी नौकरी. IAS IPS में आने के बाद भी मिलियन फॉलोअर्स, वो सब नाटक नौटंकी है. इट्स अ वेरी सीरियस जॉब which requires a person who is very serious about his work. You have to be serious about your work, not about yourself. Unfortunately, आजकल क्या है कि मैं देखता हूँ यंगर जनरेशन में people are very serious about themselves. They are not very serious about the work that they do. तो ये दोनों चीज़ों में अंतर है. अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए, पर अपना जो काम है उसको, तैयारी को बड़ी सीरियसली लीजिए. खुद को भले ही आप खुद पे हंसें, पर यहाँ के लोग खुद को बड़ी सीरियस टाइट होकर चल रहे हैं. तैयारी ऐसी ही चल रही है. दोनों में अंतर है. सो यू हैव टू रीड इन माई व्यू. प्लीज आप बैठ के. हाँ, So how to manage UPSC preparation as well as doing college studies. College studies के साथ साथ आप preparation में कैसे how to manage both? एक्चुअली आई वोंट नो बिकॉज आई डिडंट डू दैट. तो मैं आपको अपना एक आइडिया दे सकता हूँ. हाँ, मैं अपना व्यू एक आपको दे रहा हूँ. आई हैव नॉट डन इट बिकॉज एज आई टोल्ड यू. प्लीज हैव अ सीट. I prepared, I quit my job and then I prepared. In my college, I did nothing about UPSC. There were several good students who were preparing for civil service while we were in college. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग तैयार करके रखा था. तो दे जस्ट नीडेड टू प्रिपेयर वन सब्जेक्ट एंड GS. मेरे साथ ऐसा नहीं था. आई हैड डन नो प्रिपरेशन इन माई कॉलेज. और मगर ये कि कॉलेज में हमने डींग बहुत मारते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे. आई टोल्ड यू ना कि वो भी एक प्रिपरेशन थी हमारी, कि हम पहले से तैयार थे कि हम IPS बनने वाले हैं, पढ़ाई तो बाद में कर ही लेंगे. तो मेरी प्रॉब्लम उल्टी थी, किया कुछ नहीं और खाली बैठ के डे ड्रीमिंग करना. तो वो भी एक है. बट ऑन अ सीरियस नोट, कॉलेज में प्रेपरेशन करने के लिए व्हाट आई कैन एडवाइज यू, आई थिंक यू हैव वन ऑप्शनल एंड द GS ओनली दीज डेज. सो व्हाट आई कैन से इन जनरल इज दैट यू कैन फोकस ऑन GS व्हेन यू आर इन कॉलेज. NCERT की बुक्स हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट. या कुछ अच्छे नोट्स आपको कहीं मिल जाएं, प्लीज गो थ्रू दैट. हाँ, सो वो आप पढ़िए उसको, जो आपकी कोचिंग जो भी आपको दे रही है. या NCERT की बुक्स आज भी बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत बढ़िया रेफरेंस है. इनफैक्ट मैंने अपने पेपर 2 की तैयारी ज्योग्राफी की पूरी NCERT से ही की थी, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ लर्निंग इवन टुडे. आई एम श्योर वेरी हाई क्वालिटी बुक्स. गवर्नमेंट की जो चीज़ें कुछ होती हैं वो हमेशा बेस्ट रहती हैं. यू मस्ट रिमेंबर दैट. तो वो आप कर सकती हैं. GS की तैयारी कर सकती हैं. अगर आपका ऑप्शनल वही है जो आप पढ़ रही हैं, तो फिर आप उसकी भी तैयारी कॉलेज में कर सकती हैं. अगर वो सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं हो देन देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना. मेरे एज आई टोल्ड यू, आई ऑप्टेड फॉर द सब्जेक्ट्स व्हिच वर नॉट कंसिडर्ड वेरी स्कोरिंग, सोशियोलॉजी इन पर्टिकुलर. बट आई डोंट नो. फॉर एग्जांपल, there are times when people say this subject is scoring that, but this changes very fast. So you should go by for a subject which you can study. In today's scenario, sir, rank matters a lot. So that's what I am saying. No, rank has always mattered. It was never been easy to secure a rank in UPSC, and it has always mattered. Don't go by my persona. There are some actually very well read good people who get a good rank in UPSC. आप मुझसे UPSC का अंदाज़ा ना लगाएं. UPSC वाकई बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने क्वालिफाई किया है. अब मेरे से खाली अंदाज़ा ना आप लगाएं. तो रैंक हमेशा मैटर करता था. ये हमेशा से बड़ा गंभीर एग्जाम था. आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि कैसे कैसे आदमी आ जाते हैं, पर कई अच्छे स्टूडेंट्स ने भी इसको बहुत क्वालिफाई किया है. तो आप सिर्फ मुझसे ना अंदाज़ा लगाएं. इट हैज़ ऑलवेज मैटर्ड. No, it has always mattered. And देखिए, बेसिक्स ऑफ द एग्जाम हैव नेवर चेंज, दे विल नेवर चेंज. किसी भी अच्छे रिगरस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं. जैसे क्रिकेट में बेसिक सेम रहते हैं ना, T20 या 1. अब आप देख लीजिए जिनकी टेक्निक अच्छी नहीं है, आप उनको ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए उनका क्या हो रहा है बैट्समैन का. वो T20 में छक्के मारते हैं, वहाँ 2 बॉल नहीं खेली जाती. तो जो अच्छी जिनकी टेक्निक है वो वहाँ भी खेलेंगे, वो T20 में भी खेलेंगे. तो UPSC इज लाइक दैट. वो 100 वर्ड्स का भी लिख लेगा, 200 भी लिख लेगा, ऑब्जेक्टिव भी अच्छा करेगा.
यू हैव टू बी ए गुड स्टूडेंट फॉर दैट. और जो ये कहना बकवास है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, ये ऐसा नहीं होता है. एज आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के लिए नहीं चाहिए. एक बड़ा सिंपल, एक अच्छी चीज़ जो मैंने यूपीएससी में पाया, दे लुक फॉर वेरी सिंपल आंसर्स, बट यू हैव टू एड्रेस दी क्वेश्चन. वो क्वेश्चन का आंसर खोज रहा है, जानकारी आपके पास कितनी वो नहीं खोज रहा है. तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. आपको वो लिखना है जो वो मांग रहा है आपसे. सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट अकॉर्डिंगली इन एज मेनी वर्ड्स इन दैट टाइम. आई कीप रिपीटिंग दिस टू यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी सिंपल थिंग, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस एट टाइम्स. बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, हु मिस दिस फंडामेंटल पॉइंट. उनको नॉलेज बहुत है, लिखना बहुत अच्छा आता है, बट इन दैट टाइम पीरियड, अंडर दैट स्ट्रेस, दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस दैट नॉलेज टू दैट मिनिमम. तो वो एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी. जी. What are some of the advantages and disadvantages after becoming an IPS? I don't see any disadvantage. There are several advantages. The only disadvantage is that you are in public life, so you have to conduct yourself accordingly. You cannot behave or dress any whichever way you like. If I come here as an IPS officer, I have to conduct myself with certain decorum. You are all youngsters sitting before me. I have to behave in a certain way. अब ये नहीं हो सकता कि मैं बाल लंबे रख लूँ, वो अलाउड नहीं है, या मैं दाढ़ी बढ़ा के घूमूँ, या मैं एक चप्पल पहन के दूसरे पैर नंगा पैर यहाँ चलाऊँ मस्ती में. ऐसा नहीं हो सकता. वो बोहेमियन एटीट्यूड मैं नहीं रख सकता हूँ. दूसरा, आप अपने काम के बारे में, देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब विच यू कैनॉट शेयर पब्लिकली. There are certain things which are confidential, so you are not expected to share them with anyone. So these are the few things that you have to be very careful about, how you, and as a government servant in particular, you have to remember that you reflect the prestige of the government. तो आपका कोई एक्शन या कोई वर्ड ऐसा ना हो जो घटिया हो, जिससे सरकार की छवि या सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप रोड पे झगड़ रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दैट्स नॉट अलाउड. अ कॉमन सिटीजन कैन गेट अवे विद दैट, बट मे बी आई कांट गेट अवे विद दैट. आई विल बी इन ट्रबल इफ आई indulge in that kind of nonsense. So that is something that restriction you have to follow lifelong. मुझे लगा वरना आप तो, मुझे लगा कि आपको देख के लगा कि हम लोग जिया सराय में साथ थे, आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं. जी जी. तो मैं, जैसे आपने बोला है कि मैं नास्तिक हूँ, और सबसे पहले मैं जो धन्यवाद करूँगा अपने माता पिता का कि आज मैं यहाँ पेरेंट्स होने के नाते से मैं बच्चों को किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा हूँ, कहीं मैं कोई ऐसा कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ. बट बच्ची ये है कि उन्होंने मेरे को खुद बोला है कि पापा जी को सिविल सर्विसेज की साइड जाना. देखिए, मैं कुरान की एक लोग हदीस है, एक बताते हैं कि द प्रॉफिट मोहम्मद, शायद उन्होंने कहा है, इट्स नॉट कन्फर्म बट है कि इट गोज़ लाइक दिस, आई थिंक, अल जन्नतु तहता अकादमील उम्माहत, कि जन्नत जो है माँ के पैरों के नीचे है. तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ. मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मगर मेरी माँ, मैंने 3 महीने पहले उसको खोया. मैं ये मानता हूँ कि जन्नत जो है वो माँ के पैरों के नीचे ही है. जब तक वो बैठी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, मेरी कोई मुसीबत मुझे छू नहीं सकती. मैं DIG हो गया, SP हो गया ज़िले का, SPG में रहा, PM सिक्योरिटी में रहा, NSG में रहा. जब मैं घर आता था वो बैठी होती थी, उसको देख के मुझे लगता था कि जब तक ये बैठी हैं मैं तो इनकी छाँव में बैठा हूँ. पिताजी को मैंने बहुत पहले ही खो दिया, 20 साल पहले. तो ये सच है, मैं इसको दिल से कह रहा हूँ कि माँ बाप जो है भगवान का ही रूप है. अगर भगवान है तो, भगवान को तो मैं मानता नहीं, पर अगर भगवान है तो मुझे लगता है माँ बाप से ऊपर तो हो नहीं सकता है. तो जो वो आपके लिए कहते हैं, सोचते हैं, उससे ज़्यादा कोई सोच नहीं सकता. उनकी बातों को अगर कुछ कड़वी बात भी हो तो उसको आपको उसी तरह से लेना चाहिए. जो लोग अपने माँ बाप को खो देते हैं, जैसे मैं खो चुका हूँ, उन्हीं को कीमत पता है. कई बार हमारे पास जो चीज़ है उसकी कीमत हमें नहीं पता होती. ये IAS IPS कुछ नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ जॉब, एक नौकरी है, ठीक है, अच्छी नौकरी है, मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो. पर माँ बाप का मुकाबला, माँ बाप के पैर का भी ये मुकाबला नहीं करता है. मैं कोई रिलीजियस एंगल से बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भुक्त भोगी हूँ जिस बात का उसको कह रहा हूँ. इससे बड़ा कोई साया नहीं है दुनिया में आपके ऊपर. इससे ज़्यादा कोई शफ़क़त या मोहब्बत आपके साथ नहीं कर सकता है. आपका इससे बड़ा वेल विशर कोई नहीं है. अगर ये बात आपको नहीं समझ में आए तो आप बड़े अभागे हैं, अनफॉर्चुनेट हैं. मैं आपके लिए क्या कह सकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ. बट ये सच है. तो आप इसको जैसे भी गाइड करें बच्चे को, वो ठीक है. इसके लिए अगर आप सोचते रहें कि कैसे गाइड करना, तो ठीक नहीं है. आप चाहे उसको डांट के गाइड करें या प्यार से करें, तो उसको पता होना चाहिए कि आपसे बड़ा उसका कोई वेल विशर नहीं है. ये दुविधा माँ बाप को नहीं होनी चाहिए. ये दुविधा तो बच्चों को है, जो गलत है. मैं एक एक्स बच्चा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, फॉर्मर बच्चा हूँ, अब मिडिल एज आदमी हूँ, बट बचपन में मैं बच्चा था, इसलिए मैं ये बात जानता हूँ. ओके, आप लोगों ने सुना शालीन को, हाई वोल्टेज स्पीच, मोटिवेटर, इंस्पिरेशनल स्पीकर,
ये मसूरी में कई बार जाते रहे हैं, मसूरी आप जानते हैं, लबासना। हाँ लबासना में जाते हैं। ही हैज बीन गिवन अवार्ड फॉर गुड स्पीकर देयर आल्सो। नहीं, वहाँ भी सिफारिश से ही पहुँचे थे, वहाँ कोई जानता था लेकिन वहाँ अच्छा कर गए। नहीं, पता नहीं, वहाँ ऐसा कहा जाता है, वो हम ही कह रहे हैं लोगों से, वहाँ उन्होंने कभी नहीं कहा। खैर आप लोगों ने काफी क्वेश्चन पूछे शालीन से और इनकी काफी स्पीच सुनी आपने। कुछ क्वेश्चंस हम लोग भी थोड़ा पूछना चाहते हैं ताकि जो कि आप लोगों के हेल्पिंग भी रहे। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पैसे मैं कब लौटाऊंगा जो आपसे 20 साल पहले मैंने लिए थे, वो तो मैं नहीं लौटाऊंगा। अगली बार उसको देख लेंगे। आप कबाब मेरी गाड़ी में रखवा रहे हैं कि नहीं? चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मे बी इट इज हेल्पफुल फॉर यू आल्सो। लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा शालीन से कि जब इन्होंने सबसे पहले इनको आईपीएस बनने का सबसे पहले कब इनको ये सोचा कि हाँ आई वांट टू बिकम एन आईपीएस नॉट एन आईएएस, बस इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा वो पल था जिन्होंने सोचा कि आईपीएस ही बनना है? जब 20 मार्च 1993 को होली वाला दिन था, मुझे मार पड़ी थाने में और मेरे पिताजी ने मुझे 2500 रुपया दे के छुड़वाया लॉकअप से, तब मुझे में समझ में आया कि मैं आईपीएस ही बनना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। अब इसको कैसे कहूँ समझ में नहीं आता। आईपीएस बनने का भी आया तो पिट के आया। कुछ पिटाइयां बड़ी काम की होती क्योंकि लातों के भूत जो होते हैं, ऑलवेज अपलॉड पिटाई आल्सो। कोई पीटे तो उसको कैसे पॉजिटिवली लेना इनसे। देखिए डंडा भी एक पीर है, किसी किसी को क्या बना देता है। पुलिस की मार भी सौभाग्य हमारा पड़ी हमें सही मौके पर और सही जगह पर पड़ी। अभी भी दर्द होता है जब पछुआ चलता है। चलिए अगला सवाल पूछते हैं इनसे कि आईपीएस ऑफिसर बनने का इनका सबसे बेस्ट मोमेंट कब रहा, जिनको लगा कि मैं आज आईपीएस हूँ, आज मेरा आईपीएस होने की इनको बहुत खुशी है, वो मोमेंट कौन से बनने के बाद? देखिए ऐसे तो कई मोमेंट्स हैं, मैं मगर मेरे लिए कहूँगा कि मैं 6 साल तक एसपीजी में था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में। मैं प्रधानमंत्री की क्लोज प्रोटेक्शन टीम का इंचार्ज रहा हूँ। आई वॉज इंचार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स क्लोज प्रोटेक्शन टीम। तो दोनों प्रधानमंत्री माननीय भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मनमोहन सिंह जी एंड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। So when I was in charge of the close protection team of the Prime Minister and I carried a loaded gun to protect the Prime Minister of India, I moved with them and I was in charge for their close protection. It was a matter of great pride for me and my family. और मुझे बहुत ही गर्व होता था उस बात का कि मैं प्रधानमंत्री के निकटतम सुरक्षा घेरे का इंचार्ज हूँ। मुझ पर ऐसा भरोसा मेरे देश ने, मेरे सिस्टम ने किया है। तो दैट रिमेन्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी। उससे ज़्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हुआ। शालीन से एक सवाल और पूछते हैं, जब प्रिपरेशन के समय में सबसे टफेस्ट टाइम कब रहा जब हम लोग जीएस रैम तैयारी कर रहे थे साथ में? इट वाज सम 98 तो सबसे टफ टाइम कौन सा रहा जिसमें ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, कैसे पास करेंगे? शुरू का एक हफ्ता सच बताऊं तो जब हेरलम्बोस और बॉटमोर दो किताबें एस्ट्रोलॉजी की जब वो पढ़नी शुरू की तो मुझे ऐसी भयंकर नींद आती थी। जुलाई का महीना था 98 का, मुझे याद है, और गर्मी, उमस और नौकरी छोड़ के आदमी बैठा है और तैयारी कर रहा है, कभी पढ़ा नहीं ह्यूमैनिटीज़। तो लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इसको 2 दिन नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं कहाँ फंस गया इसमें। तो शुरू का जो एक हफ्ता था वो सच में मुझे बहुत, सोशियोलॉजी का बहुत ही टफ लगा। मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से मैं इसको पढ़ूंगा और कहाँ से मैं प्रीलिम्स दूंगा, मेंस दूंगा, कब जाके ख़त्म होगा, ये तो मैं 2 दिन नहीं पढ़ पाऊंगा। तो वो शुरू का एक हफ्ता बहुत ही टफ था मेरे लिए, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि आई एम ऑल एट सी, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मुझसे होने वाला नहीं है, और वो भी इन सब्जेक्ट्स का जो मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं। तो दैट वाज अ बिग इशू फॉर मी। शालीन आपने इंटरव्यू दिया था आईएएस का, उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा इंटरव्यू जो आपने when you cracked the second when you became IPS? देखिए द फर्स्ट अटेम्प्ट आई टोल्ड देम दैट आई वाज वेरी ओवर एक्साइटेड एंड रेडी दैट दे आस्क्ड मी अबाउट माय फर्स्ट चॉइस व्हिच वाज द आईपीएस, व्हिच नेवर हैपेंड। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली ऑप्ट फॉर द आईपीएस। वो लोग बोलते बहुत हैं, अब आप उनका यूट्यूब पे देखेंगे किसी का मोटिवेशनल तो सब कहेंगे हम आईपीएस बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हार्डली 2 or 3% पीपल, मोस्टली पीपल लाइन अप फॉर आईएएस बिकॉज इट हैज़ मोर डाइवर्सिटी, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मोर sought after service. It is because of the enormous diversity which offers, which police doesn't offer. So police, I am a firm believer, it is for a certain mindset for people who really want to be police officers. ये मेरा अपना मानना है and it is simply my, I always had this view. तो मैं जब सेकंड इंटरव्यू में गया तो मैं बड़ा थोड़ा सा ये था कि अपसेट सा था कि यार मेरा तो पहली बार ही हो जाना चाहिए था अगर इंटरव्यू नंबर और आ जाते तो आई वॉज वेरी मैटर ऑफ फैक्ट एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेट। लोगों ने कहा जी ऐसे बात करो, ऐसे करो मॉक इंटरव्यूज़ में, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आई थिंक पीपल हु सिट देयर, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल। वो 15-20 मिनट में थोड़ा बहुत तो जज आपको कर लेते हैं। नोबडी कैन परफेक्टली जज यू, अगेन इट कम्स टू योर लक एंड योर डेस्टिनी। समटाइम्स यू माइट एंड अप मेकिंग अ वेरी बैड इंप्रेशन, ऑल्दो यू माइट बी अ वेरी वेल मीनिंग पर्सन।
ये नहीं मैं कह रहा हूँ, बट 15-20 मिनट में थोड़ा बहुत आइडिया आदमी का लगता है। तो उस अनुभवी लोगों को जो वहाँ बैठे हैं उनको आप चालाकी से बेवकूफ़ बनाएंगे, ये पॉसिबल है नहीं। मैंने पहले अटेम्प्ट में कोशिश करके देखी थी तो हुआ नहीं। तो सेकंड एंड में जब उन्होंने पूछा भी नहीं मुझे चॉइस के बारे में, दे जस्ट आई टोल्ड, दे आस्क्ड मी कि इफ यू आर इन रेलवेज, यू आर अपीयरिंग अगेन, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट इंप्रूव एंड यू लैंड अप इन रेलवेज, विल यू कंटिन्यू और विल यू? तो आई टोल्ड देम कि आई विल कंटिन्यू, आई एम ऑलरेडी 26 ईयर्स ओल्ड। अब मैं कब तक तैयारी करता रहूँ, मुझे नौकरी भी करनी है। आई हैव अ फैमिली विच लुक्स अप टू मी एंड यू नो माई पेरेंट्स आर getting old and it's about time that I contributed to my family's well-being. So this is what I told them very honestly. And then there are some other questions which I think I answered okay. So I did well and I got good marks. How much you scored? 210 out of 300. That's good score. It's a good score. Generally, marks is given. नहीं ठीक था, okay. अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे, it is given percentage. Your personality is assessed on the basis of percentage at 75%, 60%. नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, उनसे भी हुई, मतलब नहीं, गलती नहीं, सही हुई। Dynamic IPS, very good. You can say they were right in choosing you. और okay, last question, 34th rank आई जब as a after selection, what was your reaction? जब 34th रैंक आपको सामने हम लोग तो देख मैं लिया। आपको सच बताऊं, वो तो जी न्यूज़ में आपको क्लिप मिल जाएगा मेरा जो रिएक्शन था, कूदने लगा था यूपीएससी के बाद, वो अभी भी आपको मिल जाएगा। माय फादर सॉ इट ऑन टीवी। उससे पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा मेरा आपको बताऊं हुआ, जब फर्स्ट टाइम मैं देखने गया 99 में एग्जाम, 2000 में जब रिजल्ट आया फर्स्ट अटैम्प्ट का, तो रिजल्ट लगा था इन सीक्वेंस ऑफ रोल नंबर्स और ब्रैकेट में लिखा था रैंक। मैंने देखा तो मेरा दूसरा था, मैंने कहा मैं तो ऑल इंडिया सेकंड आ गया, तो मैं कूदने लगा। आई एम नॉट जोकिंग, मैं ऑल इंडिया सेकंड रहा हूँ 3-4 मिनट तक। तो मेरे दो साथ गए थे, उन्होंने गले लगा लिया, तो मीडिया वाले खड़े आए, बोले कि सर आपका नाम सम ये है। मैंने कहा नहीं, बोले सेकंड जो उनको पास लिस्ट थी सेकंड तो ये है। मैंने कहा ये कैसे? फिर देखा तो ब्रैकेट में रैंक लिखा था 202, वो सीक्वेंस ऑफ रोल नंबर्स में था, जिसको 1 सीरियल नंबर 2 देख के मुझे रैंक समझ लिया मैंने। तो मैं 34 से पहले रैंक 2 की खुशी प्राप्त कर चुका था। तो जब 34वां आया तो क्या खुशी होती, 1 साल पहले दूसरा रैंक आके हाथ से निकल गया था। ये बिल्कुल फैक्ट है एक्चुअली। एक मैं लाइव एक्सपीरियंस आप लोग बताता हूँ। जब रिजल्ट आया था तो एक हम लोग फ्रेंड था सौरभ बाबू, को भी आप सर्च करिएगा नेट पे, ही वाज टॉपर इन 2000 बैच। तो जब हम लोग रिजल्ट देखने गए तो उसमें दिखाते हैं, उसमें नंबर वाइज नहीं होता है, वो ऐसे सीक्वेंस आप लिस्ट देखते जाइए नेट पे। तो हम लोग साथ हमारा एक फ्रेंड था, उसका मैकेनिकल और मैथ्स था, सौरभ बाबू का भी मैकेनिकल मैथ्स था। हम लोग जब देखने लगे पूरा लिस्ट में तो लास्ट तक सौरभ बाबू का नाम कहीं नहीं आया। तो हम और आनंद जैन, ही इज नाउ आईपीएस इन जम्मू कश्मीर कैडर, तो उसने कहा जो सौरभ का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अपना सोच ही नहीं रहा है वो। फाइनली सोचा क्या लगता है सौरभ का सिलेक्शन नहीं हुआ और चलो मैं तो कट ही गया हूँ, कोई बात ही नहीं। लेकिन बाद हमने पूरा सर्च किया, लास्ट पे जो सौरभ बाबू 1 नंबर लिखा था। क्या देखो ये होती यूपीएससी वाले ऐसे बनाते हैं, इसका 1 रैंक तो हो ही नहीं सकता, इसका 199 हो सकता है। तो मैं 3-4 मिनट तक ऑल इंडिया रैंक 2 भी रहा हूँ। यू कैन इमेजिन, कूद रहा, उसके बाद 202 है, तो 202 का भी मजा खराब हो गया, क्योंकि आप 2 से 202 पे आ गए ना। तो उस साल उसका फर्स्ट रैंक थी, और तो उसको अपने सिलेक्शन का नहीं होने का जितना दुख नहीं, उससे ज्यादा दुख था क्योंकि फर्स्ट रैंक कैसे आ गई। नहीं, उसका दुख कई लोगों को आज भी है। तो उसको क्या सौरभ बाबू फर्स्ट रैंक आ गए, फिर कहीं लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो कह रहे दैट समटाइम इट हैपेंस। सो इट वाज अ थैंक यू फॉर a nice session, Shaleen. It is our honor that you are here. Thank you for a nice motivation and inspirational lecture. Thank you so much, everybody. Thank you so much.